Hello student, I welcome to all of you in my online classes. Student, this video is about class 12. So as you know, we are discussing database management system. In my last video, I have discussed the different type of operator, the different type of clauses, group functions, which is also known as aggregate functions, and the having clause with distinct operator. Now in today's video I am going to tell you about the some DML command in which the insert, delete and update command comes. So let's get started. So first of all, if you want to do DML command, you have to start your IDE software which is in XAMPP. You just click on XAMPP control panel. Okay, here you will see the XAMPP control panel. Here you have to start MySQL. Okay, just click on MySQL and close it, and ensure that the MySQL service will start on this port number and close it. After that, you have to start MySQL. You have to copy the path of MySQL from here. You just copy it and open CMD command prompt. After that you have to change the path cd. cd means, बेटा यहाँ पे cd का मतलब क्या है? Change directory, and then control V. Whatever is the path you have copied, you just paste it here and then enter. Right? Now the path has been changed. Now you are in MySQL folder, and here you have to call mysql.exe with username root and then password is blank now. Okay, mysql.exe, then hyphen u, that is user, and root is a username, and then space, and then enter it. Once you have entered, now you can see this window will appear. ठीक है, MariaDB, and there is a none. Why none is displaying here? Because now you are not using any database. To write a command, use database. Here I have pps db. So now database changed, और जो पहले वहां ऊपर पे नॉन लिखा है बेटा, यहाँ पे क्या हो गया अभी? pps db. Now it means now you are using pps db database. Okay. After that you have to check what are the table you have in this database. Just write a command, show data bases, semicolon. Now so you can see the different type of databases here, and now you are choosing what? pps db. Okay. Similarly, show tables. Now you can see the three table: department, employee and the student. Okay beta. Now if you want to see the structure of this table, just simply write the describe command, DESCEMP. So now you can see the employees table fields, their data types, okay, the keys. Similarly, if you want to see the structure of department table, DESC and then DEPT. Department is my table name and DESC is a keyword, right, which describe employee structure. Similarly, this describe department structure. See, right, there are two columns, department ID and department name and their data types. Okay beta. Now here I am going to show you the table also. Select star from department. So you can see
the department table having the 8 records with department IDs and department name. Similarly, select star from employee. This is my employee table. The 7 record with their employee IDs, the name, the salary and their department IDs. Okay. Now in employee and department there is a relationship between them. Okay. Now you can see the department IDs 1 to 18. Here you can see the 18, 13, 14, 11 and 12 department ID is there. ओके तो बेटा यहाँ इन दोनों टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है. अब रिलेशनशिप कैसे हमने इंप्लीमेंट किया है वो हम देखेंगे अभी. ठीक है. नाउ माय टुडेज एजेंडा इज टू अंडरस्टैंड DML कमांड. ओके. नाउ इन DML the insert, delete and update command will come. So first of all I am going to show you how to insert a record. Okay. So suppose there are 7 employees in the employee table. I want to add one more record here. So first of all insert into, right? Then table name, that is employee. Then values, right? Values. And then after that you put the bracket and put the first ID value, that is 800. क्योंकि यहाँ पे 700 हमने दिया है बेटा, हमने नेक्स्ट ID वैल्यू क्या दी 800. नेक्स्ट नेम हमने यहाँ पे लिखा मनीष झा. नेक्स्ट अब उसकी सैलरी बेटा हमको डिसाइड करनी है, तो मे बी हमने यहाँ पे 14,800 हमने सैलरी डिसाइड कर दी. आफ्टर दैट हिज डिपार्टमेंट आईडी. तो बेटा डिपार्टमेंट आईडी वही होगा जो हमारे डिपार्टमेंट टेबल में है, जो हमारे पास अवेलेबल डिपार्टमेंट है वही हम डिपार्टमेंट असाइन करेंगे. तो मैंने यहाँ पे असाइन क्या कर दिया MTS. ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ. उसके लिए डिपार्टमेंट आईडी क्या है बेटा, यहाँ पे देखो जाकर 18 है. यहाँ पे क्या होना चाहिए 18, तो मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया. ठीक है, सेमीकोलन एंड देन एंटर. तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दिखा रहा है, 1 रो अफेक्टेड. अब इसी को यहाँ पे देखेंगे, वापस से क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. यहाँ पे 7 रिकॉर्ड आ रहे थे, अब क्या यहाँ पे 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं. तो यस ये रिकॉर्ड आ रहे हैं. अब ये रिकॉर्ड आप चाहते हो परमानेंटली इसमें सेव हो जाए, तो आप क्या करेंगे कमिट. कमिट का मतलब क्या, जो भी आपने क्वेरी अभी इंप्लीमेंट की है वो क्या परमानेंटली सेव हो जाए रिकॉर्ड. तो आपका रिकॉर्ड यहाँ पे 800 मनीष झा 14,800 और उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है 18. क्लियर. तो ये आपने एक नया रिकॉर्ड एंटर किया विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड. ठीक है, देखिए हमने इंसर्ट कमांड क्या लिखा था, ये हमारा इंसर्ट कमांड था. अब अगर हमको एक कोई और रिकॉर्ड एंटर करनी है, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले हमने कमांड क्या लिखना है इंसर्ट. ठीक है, फिर इनटू, कहां पे आपको रिकॉर्ड एंटर करना है, तो टेबल का नाम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज. ठीक है, और वैल्यूज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू टेबल स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट द वैल्यू. टेबल स्ट्रक्चर में पहला आईडी आ रहा है तो पहले हम आईडी वैल्यू एंटर करेंगे. ठीक है, दूसरा क्या आ रहा है नेम, और दूसरा नेम एंटर करेंगे. तीसरा क्या आ रहा है सैलरी आ रहा है, चौथा क्या है डिपार्टमेंट आईडी आ रहा है. तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, वैल्यू को इंसर्ट करनी है. चलिए हमने नई वैल्यू एंटर कर दी, हमने यहाँ पे दे दिया 900. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया दिनेश यादव. ठीक है, और यहाँ पे हमने 19,800 और इस बार हमने यहाँ पे 11 कर दिया. तो ये हमारा नया डिपार्टमेंट है. अब ये हमने एंटर किया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. कमिट करने के बाद सेलेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 एम्प्लॉइज आईडी इसका है दिनेश यादव, और यहाँ पर सैलरी इसका है, और यहाँ पे इसकी क्या है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी. तो बेटा मैंने इस बार इस तरह से मैंने आपको क्या सिखाया, कैसे हम नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे. ठीक है, टेबल के अंदर. अब दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा सैलरी अपडेट का. ठीक है, हमारे पास एक और टेबल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या कहते हैं स्टूडेंट. ठीक है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल है. ठीक, स्टूडेंट में क्या है, एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, देयर फीस है. हम चाहते हैं कि बच्चों की फीस में, ठीक है, 200 का हम इंक्रीमेंट करें, 200 रुपीज का सभी बच्चों की फीस में 200 का इंक्रीमेंट करें. तो कैसे करेंगे, अपडेट
अपडेट, किसमें अपडेट करना है? स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट टेबल में। सेट, क्या सेट करना है बेटा हमें? फीस। क्या फीस होनी चाहिए? अब जो भी फीस है उसमें हम क्या करेंगे? फीस में एडिशन करेंगे, किसका? 200 का। तुमने यहां पे लिख दिया फीस प्लस 200, ठीक है। हमने सिर्फ इतना लिखा, फीस इक्वल टू फीस प्लस 200। अब देखते हैं हम इससे क्या होगा। जो भी हमारी फीस है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? अपडेशन हो जाएगा, किसका? 200 का। देखो 3500 यहाँ पे आ रहा है, 3500 आ रहा है, यहाँ पे 2000 आ रहा है, यहाँ पे 2500 आ रहा है। एंटर सेमीकोलन करते हैं तो सभी के फीस में 200 का क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है बेटा? ओके, 11 रोज अफेक्टेड 0 सेकंड, रो मैच्ड 11, चेंज वार्निंग 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिखा हमने? स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले फीस कितनी थी? पहले वाले स्टूडेंट की, रिया गौतम की, इसका आईडी क्या है? एडमिशन नंबर क्या? 100, तो इसकी फीस क्या है? 3500। अभी फीस क्या हो गई है? 3700, 3700, ठीक है। ठीक उसी तरह से सेकंड जो इमरान खान 110, इसका एडमिशन नंबर था क्या है? 2000 था फीस, 10th का था, अभी कितनी हो रही? 2200, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया? अपने रिकॉर्ड में अपडेट किया, ठीक है। रिकॉर्ड हमने क्या कर दिया? अपडेट कर दिया। ठीक उसी तरह से अब अगर मान लो किसी एक, अब यहां तो मैंने सबका अपडेट किया रिकॉर्ड, है ना। देखिए ना हमने क्या लिखा? अपडेट स्टूडेंट सेट। देखो अभी यहां पे लिखते हैं क्या? वापस से क्वेरी आ जाते हैं। ये देखिए इससे क्या हुआ? अपडेट स्टूडेंट सेट फीस इज इक्वल टू फीस प्लस 200। इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी बच्चे हमारे पास है उन सभी की फीस में 200 का इंक्रीमेंट करना है। तो आपको ये क्वेरी लिखना है। अगर मान लीजिए किसी स्पेसिफिक बच्चे का करना है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे कर देंगे WHERE वेयर। अब यहाँ पे फीस में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। वेयर हमने यहाँ पे लिखा एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 9999। इसका मतलब क्या? सभी में नहीं करना है, अभी जिसका एडमिशन नंबर 99 है सिर्फ उसी का। अभी देखिए कितना है? 3700 है। हम चाहते हैं इसके फीस में माइनस कर दिया जाए 700, सिर्फ खाली इसी की फीस में 700 क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। तो अभी देखिए फीस कितनी है? 3700 है, माइनस कर देंगे तो 3000 हो जाएगी। इसके बाद जाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन एंटर करते हैं एंड देन एंटर। देखो बेटा यहाँ पे हो गया। अब वापस हम क्वेरी को लिखते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे लास्ट वाले में 900 वाले में इसका जो 3700 था अभी कितना हो गया? 3000 हो गया, ठीक है। अभी चेंजेस रखना चाहते हैं आप, COMMIT कमिट कर देंगे। जो हमने जो चेंजेस किए वो परमानेंटली क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। कमिट ऑप्शन आपको ये बताता है, ठीक है। सो डेटाबेस में जो भी चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली क्या होंगे? परमानेंटली सेव हो जाएंगे कमिट से। अब इसके बाद क्या? एक और अपडेट कमांड देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने गलती से रोहित यादव लिख दिया, उसका रोहित मिश्रा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोहित यादव है, उसका नाम क्या रखना है? रोहित मिश्रा रखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अपडेट हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? अपडेट लिखेंगे, ठीक है। कहां पर अपडेट करना? टेबल में। टेबल का नाम क्या? स्टूडेंट। क्या सेट करना है इस बार? नेम सेट करना है। तो कॉलम का नाम क्या है? देखिए नेम लिखा हुआ, कॉलम का नाम क्या? नेम है। यहाँ पे नेम लिखेंगे आप इज इक्वल टू क्या करना है? रोहित कुमार। चलो यहाँ पे यादव है, यादव से हमें क्या करना है? रोहित कुमार करना है। किसका करना है? वेयर। यहाँ पे क्या आईडी लिखा हुआ है? 8888 वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 888, ठीक है। इसका मतलब क्या? जहां पर 88 आईडी है उसमें नेम में क्या चेंजेस कर दो जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। सेमी एंटर करेंगे, ठीक है। वापस चल के देखते हैं, कोई को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जहां पर 888 में आईडी में एडमिशन नंबर में रोहित कुमार हो गए, जो पहले क्या था? रोहित यादव था, ठीक है। तो
तो इस तरह से बेटा किसी स्पेसिफिक कॉलम में चेंज करना है, किसी स्पेसिफिक रो में चेंज करना है, तो आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं और तब आप क्या करते हैं, अपडेट करते हैं कमांड। ठीक है, और अगर सब में करना तो विदाउट वेयर क्लॉज भी आप पूरे टेबल में रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो क्वेरी होगी, ठीक है, वो होगा अपडेट के बाद डिलीट का ऑप्शन। ठीक है, तो डिलीट कैसे लिखते हैं हम? डिलीट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड को रिमूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिकॉर्ड है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये दूसरा टेबल हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए 9 रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, ये 9 रिकॉर्ड, ये एम्प्लॉय टेबल है। इससे पहले जो टेबल देख रहे थे ये स्टूडेंट टेबल है। ठीक, और दोनों टेबल हमारे किसमें, पीपीएस डीबी डेटाबेस के अंदर है। ठीक, हाँ, तो अभी करना क्या, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करना है। तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर अब यहाँ पे एडमिशन नंबर तो नहीं, यहाँ पे क्या EID है, EID इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा 900, यानी कि हमको सिर्फ खाली 900 वाले का रिमूव करना, या किसी भी स्पेसिफिक आईडी आप यहाँ से उठा सकते हैं, कोई लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे लास्ट वाला लिया है। ठीक है, 900, अब यहाँ से एंटर कर सकते हैं, एंटर करेंगे, एंटर किया, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इज इक्वल टू 900, यानी कि 900 वाला आईडी वाला हमारा रिकॉर्ड रिमूव हो जाए। अब देखेंगे वापस सेलेक्ट स्टार करके देखेंगे तो देखिए हमारा 900 वाला रिकॉर्ड क्या हो गया, चला गया, यहाँ पे नहीं। ठीक है, फिर कोई हटाना है 900 की जगह हमने यहाँ पर 800 लिखना है, या फिर आईडी की जगह हमने क्या लिख देना बेटा, अगर मैंने लिखा आईडी, ठीक है, और यहाँ पे देखो इस बार हमने क्या लिखा आईडी, अगर देखिए अगर हमने लिखा क्या ई डिपार्टमेंट आईडी, ई डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 11, तो जैसे मैंने 11 लिखा, 11 से लिखने से क्या होगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EDID इज इक्वल टू 11। अब EDID इज इक्वल टू 11, अब जहां जहां पे 11 होगा, नहीं 11 ये है, यहाँ पर है, दो जगह 11 है, इसका मतलब ये दोनों रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। डिपार्टमेंट आईडी में जहां भी आपको 11 दिखेगा वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा रिकॉर्ड को यहाँ से। ठीक है, तो हम नहीं चाहते इसको रिमूव करना, इससे अच्छा कि हम एक रिकॉर्ड रिमूव करना है, तो हमने क्या लिखा EID इज इक्वल टू 800। अब यहाँ से हमारा एक रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर क्लॉज का यूज करके हम किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, अगर आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या होगा, ठीक है, सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, सिंपल क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे रिकॉर्ड एक साथ हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। क्लियर बेटा, एक रिकॉर्ड करना है तो वेयर क्लॉज करना, दो रिकॉर्ड करना वेयर क्लॉज यूज करेंगे, यानी कंडीशन के बेस पे रिकॉर्ड को डिलीट करना तो वेयर क्लॉज यूज आएगा, यूज करेंगे आप, और नहीं करना है कंडीशन के बेस पे तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कमांड क्या आएगा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या दिखाया बताया, अभी आपको बताया इंसर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, इंसर्ट, ठीक है, फिर क्या मैंने बताया, फिर अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है, फिर क्या बताया, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, ये 3 कमांड जो किसमें आते हैं बेटा, आपके DML कमांड में आते हैं। DML में आपके कौन कौन से कमांड आते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एंड देन एक और आएगा आपका लास्ट में क्या, सेलेक्ट। ठीक है, तो सेलेक्ट से क्या आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, जो भी आपको रिपोर्ट बनाना है वो आप जनरेट करते हैं। तो ये बेटा हमने DML कमांड में देखा। अब इसके बाद हम DDL कमांड देखने जा रहे हैं। ठीक है, DML कमांड के बाद जो हमारा DDL कमांड है वो क्या कहता है, DDL कमांड हमारा क्या है, DDL कमांड में क्या कौन कौन से कमांड आते हैं, सबसे कमांड पहला कमांड आता है क्रिएट, ठीक है, फिर आता है हमारा ऑल्टर, ठीक है, फिर हमारा आता है ड्रॉप। अब ये कमांड हम देखने जा रहे हैं। तो क्रिएट इसके पहले हमने देख चुके हैं कि क्रिएट से कैसे टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ऑल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड आज हम चल के फिर से देखते हैं, या क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप तीनों एक बार वापस से देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आईडी हमने लिया प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, टाइप इसका ले लिया इंटीजर, और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर इसके बाद एक नया कॉलम प्रोडक्ट नेम, P नेम, टाइप var, और यहाँ पे कर दिया 20
ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन कर दिया हमने। अब देखो क्या हो गया, एक नया टेबल प्रोडक्ट के नाम से हमारा क्रिएट हो गया। कैसे देखेंगे, देखो अगर हम लिखेंगे DESC डिस्क्राइब या सिर्फ लिखेंगे शो टेबल्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हाल ही में मैंने प्रोडक्ट टेबल क्रिएट किया तो वो अभी आ रहा है, इसके पहले वो नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखना है तो DESC क्या लिखेंगे, PROD प्रोडक्ट टेबल। आपको देखो दो कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड उसके क्या टाइप दिख रहे हैं, है ना, ये दिखा रहा है। अब चलिए इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अभी आपको कितने, दो ही कॉलम दिखा रहे हैं ना, ठीक है, तो इंसर्ट कैसे करेंगे, DML का यूज करके इंसर्ट कमांड करेंगे। अभी इसी में हमें क्या करना है, ठीक है, एक नया कॉलम ऐड करना है। अब टेबल क्रिएट होने के बाद भी अगर हमें टेबल में कॉलम ऐड करने, जिसका मतलब स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करने जा रहे हैं, तो हमारा कौन सा कमांड आएगा, ऑल्टर टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल आएगा। अब क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है बेटा, यहाँ पर टेबल का नाम है प्रोडक्ट, PROD। क्या करना है इसमें भी, ठीक है, हमको एक नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, ऐड कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम, कॉलम का नाम क्या होगा, प्राइस, टाइप क्या होगा, INT लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक नया कॉलम ऐड करने का कमांड लिख दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम एंड देयर टाइप। ठीक है, तो ये हमने नया कॉलम ऐड किया इससे। देखिए ये ऑल्टर कमांड है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम एंड देन देयर टाइप। एंटर करेंगे तो देखिए क्वेरी ओके। अब उसके बाद वापस से अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, शो डिस्क्राइब, क्या लिखा, प्रोडक्ट, तो अभी देखो ऊपर वाला टेबल में कितने कॉलम दिखा रहे थे, दो कॉलम दिखा रहा था, अभी यहाँ पे कितने कॉलम दिखा रहे हैं, तीन कॉलम दिखा रहे हैं। इसका मतलब हमने टेबल में चेंजेस किए, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस किए, तो ऑल्टर कमांड यूज करेंगे चेंजेस करने के लिए। ठीक है, ऑल्टर कमांड हो गया। अब मान लेते हैं मुझे कोई कॉलम को रिमूव हटाना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल वही कमांड आएगा, ऑल्टर टेबल ऐड किया क्या जाएगा, ड्रॉप कॉलम एंड देन कॉलम का नाम। ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेरी ओके। वापस लिखते हैं DESC प्रोडक्ट, तो देखिए दो कॉलम, तीन कॉलम थे पहले यहाँ पे, अभी कितने कॉलम बचे, दो ही कॉलम बचे, यानी वापस हमने क्या किया, टेबल में से कॉलम को ड्रॉप किया। ठीक है, तो कमांड क्या लिखा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप। ये देखो ड्रॉप कमांड आ गया ना, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। किसी चीज को रिमूव करने के लिए परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस अब ड्रॉप का यूज करते हैं स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, ऑल्टर कमांड के साथ हमने ड्रॉप कमांड यूज किया। ठीक है, ऑल्टर कमांड, इसके पहले हमने क्या किया था, ऐड कमांड यूज किया था, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। एक साथ आप कई कॉलम भी यहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पे मैंने लिखा देखिए, ठीक है, ये हमारे पास आईडी हो गए, नेम हो गए। ठीक, तो अब अगर इसमें हमने क्या देखा, ऑल्टर कमांड, हमने क्रिएट कमांड देखा, हमने ड्रॉप कमांड देखा हमने। ठीक है, ऑल्टर कमांड देखा। अब अगर आपको पूरा का पूरा टेबल, जैसे अभी देखो हमने लिखा डिस्क्राइब प्रोडक्ट, तो आपको पास स्ट्रक्चर दिख के आ रहा है ना, फिर से देख लो, DESC PROD प्रोडक्ट, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, टेबल अभी है आपके पास। ठीक है, और अगर मैं लिखा शो टेबल्स, आपको देखो टेबल यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, टेबल है हमारे पास। ठीक, अब एक हम रिकॉर्ड एंटर करें ताकि आपको पता चले कि हाँ रिकॉर्ड भी है हमारे पास टेबल में। इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, सबसे पहले ID 1 एंड प्रोडक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, पेन, सेमीकोलन, 1 रो हो गया। दूसरा रिकॉर्ड, ठीक है, पेपर,
ठीक, तो 2 रिकॉर्ड हमने यहाँ पे दिया। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, PROD है, ठीक है। तो हम आप देख रहे हैं टेबल भी हमको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका टेबल अभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने कमांड लिखा ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम क्या है, PROD प्रोडक्ट, सेमीकोलन किया, ये देखिए ड्रॉप टेबल, टेबल नेम प्रोडक्ट। अब देखिए यहां से टेबल हमारा रिमूव हो गया। अब कैसे, अब चेक करना है कि रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप लिख सकते हैं DESC, आपने क्या लिखा PROD प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक। आप शो करेंगे, शो टेबल्स, आपको सिर्फ खाली कितना 3 टेबल दिखा रहा है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, स्टूडेंट। इसके पहले देखो आपको 4 दिखा रहा था, प्रोडक्ट दिखा रहा था, अब यहाँ प्रोडक्ट टेबल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको क्या बताया, DDL कमांड में कौन कौन से कमांड दिखाएं। सबसे पहले मैं बताया क्रिएट, क्रिएट कैसे होता है, फिर ऑल्टर क्या होता है, ऑल्टर कमांड क्या होता है, और फिर ड्रॉप कमांड क्या होता है। 3 कमांड मैंने आपको DDL के बताए, क्रिएट करना, ऑल्टर करना और ड्रॉप करना बताया। अच्छा, ऑल्टर में 2 चीजें मैंने बताई आपको, ऐड करना और ड्रॉप करना। एक और ऑप्शन आपके आता है मॉडिफाई करना, ठीक है। तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, सपोज जैसे मैंने यहां लिखा, वापस से करते हैं, क्रिएट, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट। अब मैंने यहां पे लिखा क्रिएट टेबल, हमने यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा PROD प्रोडक्ट, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ID PID एंड प्रोडक्ट नेम, ठीक है। टाइप क्या दिया, अच्छा प्रोडक्ट ID के बाद यहाँ पे टाइप देना इंटीजर, और देन यहाँ पे प्राइमरी की लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्राइमरी की। यहाँ पे क्या लिखा, वेर कैट, साइज क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे 10 दे दिया, सेमीकोलन किया। तो प्रोडक्ट ID इंटीजर, इसके बाद यहाँ पे कॉमा करना है, जो मैं भूल गया यहाँ पे कॉमा, ठीक है, कॉमा, देन प्रोडक्ट नेम varchar एंड देन साइज कितना 10, एंटर किया, क्वेरी ओके हो गया। अब डिस्क्राइब करेंगे DESC, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो आपको देखिए यहाँ पे varchar टाइप कितना दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अब इस साइज को हमको क्या करना है, इंक्रीज करना, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, ठीक है। आपको इसमें दिखा भी दूं कि जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है इसमें, यहाँ पर देखिए डिलीट कमांड आपको पढ़ना है क्या, ठीक है। फिर ऑल्टर कमांड है, ऑल्टर कमांड में देखिए मॉडिफाई कैसे, चेंज टोटल फीस डेटा टाइप एज नंबर 3। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, फिर इसके बाद फिर कॉलम का नेम एंड देन उसका टाइप, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर यहाँ पर मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई, देखिए जैसे आप यहाँ पे लिखा गया मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई एंड देन कॉलम का नाम, कॉलम का नाम क्या है बेटा, यहाँ पर P नेम है, P नेम, टाइप क्या है, varchar, और इसको साइज क्या दे देंगे 20। तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, अच्छा टेबल नेम मैंने यहाँ पे लिखा, टेबल नेम का नाम क्या है, प्रोडक्ट PROD, ठीक है। मॉडिफाई, कॉलम किस कॉलम को मॉडिफाई करना है, P नेम को करना है, कि साइज कितना 10 है, यहाँ पे साइज मैंने कितना दिया, चेंज किया 20 किया है, सेमीकोलन देंगे एंड देन एंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद वापस से DESC करेंगे एंड देन प्रोडक्ट PROD, सिंपल। अब आप देखेंगे यहाँ पर जहां पर varchar 10 दिखा रहा था, अभी varchar कितना है, 20 दिखा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में चेंजेस कर सकते हैं, उनका टाइप चेंज कर सकते हैं, उनका साइज चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई के बाद ड्रॉप टेबल कमांड हमने देखा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम हमने देखा है। अब जो नेक्स्ट हमें चीज देखनी है वो है हमारा इक्वी ज्वाइन, ठीक है। इक्वी ज्वाइन और ज्वाइन होता क्या, अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा टेबल से रिकॉर्ड लेकर आना है बेटा, तो वहां पर हम ज्वाइन का यूज करते हैं। तो इक्वी ज्वाइन आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल्स। यहाँ पे सिंपल सा देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्वी ज्वाइन आर यूज्ड टू गिव information in different tables. It is a special type of join in which we are use only equality operator, यानी कि equal to symbol का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल से अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है, आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, आपके पास डिपार्टमेंट टेबल है, और दोनों टेबल से आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट जनरेट करनी है,
ठीक है, तो आप इक्वी ज्वाइन का यूज करके टेबल में जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, हमारे पास टेबल कौन कौन सा है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब हमारे पास डिपार्टमेंट रिकॉर्ड है, इसमें डिपार्टमेंट के 8 डिपार्टमेंट हमारे पास है, 11 से लेके 18 तक। हर एक डिपार्टमेंट आईडी का डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम है। फिर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एम्प्लॉय को रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक, तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से हमको रिपोर्ट निकालनी है, दोनों टेबल का यूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको कहीं डिपार्टमेंट नेम दिखा नहीं देता। हमको क्या चाहिए, हमको ये इस रिकॉर्ड के साथ साथ इसके एक और कॉलम आना चाहिए यहाँ पर, जिसमें हमको क्या दिखा है, इस एम्प्लॉय आईडी का डिपार्टमेंट आईडी का डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो हम इक्वी ज्वाइन का यूज करेंगे, देखो कैसे, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट क्या लिखा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय का पहला रिकॉर्ड है, ठीक है, उसके बाद कॉमा, ठीक है, देन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर। अब क्योंकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप लगा हुआ है, यहां पर भी देखिए डिपार्टमेंट आईडी और यहां पर भी देखिए डिपार्टमेंट आईडी है, दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, सेम ही है। यानी कि जो डिपार्टमेंट होगा एम्प्लॉय टेबल में वो इन्हीं से डिपार्टमेंट से ही आएगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन करेगा और बाहर से नहीं। ठीक है ना, तो इसको मतलब ये रिकॉर्ड ही हमारे इसमें आने चाहिए, तो ये हमारा रिलेशनशिप लगा हुआ है इसमें पहले से। अब हमने क्या लिखा, वेयर डिपार्टमेंट आईडी, हमने यहाँ पे लिखा वेयर EDID इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, DID। ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर EDID इज इक्वल टू DID। अब ये DID कॉलम कौन सा होगा, ये DID कॉलम डिपार्टमेंट टेबल का है। ठीक है ना, इस टेबल का, डिपार्टमेंट टेबल का है, यानी कि कॉलम DID है, यहाँ पे क्या है, EDID। तो हमने क्या लिखा, EDID का जो रिकॉर्ड मैच करे, जैसे मान लो 18 यहाँ पर है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 18 में, 18 का डिपार्टमेंट नेम क्या है, HR है ना, तो HR रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं, एंटर करते हैं सेमीकोलन। अब आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय का ये भी डिपार्टमेंट आईडी दिखा रहा है और यहाँ का भी डिपार्टमेंट दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए MTS 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्प्लॉय MTS में है, एक्चुअली में 3 एम्प्लॉय यहाँ पर भी देखिए 18 में। ठीक है, 12 वाले यानी कि डिपार्टमेंट आईडी 12 में IT आ रहा है, ठीक है, 11 वाले में HR आ रहा है, ठीक है, मार्केटिंग आ रहा है, 14 वाले में, 13 वाले में सेल्स आ रहे हैं। सेल्स में कितने बंदे हैं, यहाँ पर 1 है, मार्केटिंग में 1 बंदा है, HR में 2 है, IT में 1 है, MTS में 3 है। ठीक है, तो आपका जो रिकॉर्ड अभी आ रहा है ये एक कॉमन रिकॉर्ड आएगा, जिसका इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में होगी, जिसकी नहीं होगी वो नहीं आएगा। मैंने डिपार्टमेंट टेबल से वो रिकॉर्ड ही आएंगे जिनका इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक है, मैंने कहा क्या कि डिपार्टमेंट टेबल से वही रिकॉर्ड सिर्फ खाली आएंगे जिनकी इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट ये एम्प्लॉय टेबल में है। ठीक है, चलिए एक और क्वेरी करते हैं इसी के साथ, लिखते हैं हमने क्या लिखा यहाँ पर, हम इसको ऐसे सेलेक्ट ले सकते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट EID, ठीक है, कॉमा EMP डॉट ENAME, सिर्फ नेम है, नेम कॉमा एम्प्लॉय EMP डॉट सेल, फिर कॉमा डिपार्टमेंट डॉट डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहां पे बेटा कॉमा फ्रॉम, फिर डिपार्टमेंट, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, वेयर EMP डॉट EDID इज इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट DID, सेमीकोलन करके रिकॉर्ड दिखाएंगे। इस बार देखिए हमारे पास सिर्फ देखो, इस पिछले बार स्टार लिखा था हमने, सारे रिकॉर्ड आ गए थे, इस बार हमने सिर्फ खाली कॉमन बताया, सिर्फ खाली ID लिया, नेम लिया, सैलरी लिया और दिया डिपार्टमेंट लिया। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट से वही रिकॉर्ड सिर्फ आ रहे हैं जिनकी इंफॉर्मेशन इस एम्प्लॉय टेबल में है, ये देखिए। ठीक है, 18 वाले आ रहे हैं, 13 वाले आ रहे हैं, 14, 11 और 12। ठीक है, तो वही रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट टेबल से आते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया। आप याद रखिए इक्वी ज्वाइन में हमेशा आपका इक्वल टू ऑपरेटर ही यूज होगा। इस ऑपरेटर को छोड़कर बाकी सारे जो ऑपरेटर रिलेशन हैं वो सारे नॉन इक्वी ज्वाइन में यूज होते हैं। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दिया तो क्या होगा बेटा,
ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से रिकॉर्ड हमको दिखाई देगा। ठीक, नॉट इक्वल टू, देखो एमटीएस भी आ रहा है, ट्रेनिंग भी आ रहा है, अकाउंट भी आ रहा है, एडमिन भी आ रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, आईटी सब आ रहे हैं हमारे। ठीक है, एडमिन अकाउंट जो पहले ट्रेनिंग नहीं आ रहे थे वो इसमें भी आ रहे हैं। तो ये हमारे नॉन इक्वलिटी जोन, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाया, नॉट इक्वल टू लगाया। ठीक है, नॉट इक्वल टू लगाया। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए इस तरह से रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इक्वी ज्वाइन आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल्स, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ज्वाइन which we use only equality operator। जैसे यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट select from product and customer where product number and customer number product number is same। ठीक है, ये देखो अब नॉन इक्वल टू ज्वाइन में यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू लगा दिया, नॉट सेम। ठीक है बेटा, ये देखिए इस तरह से रिकॉर्ड निकल के आ रहा है। तो ये दो चीजें आपको इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन पढ़नी थी। नॉन इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, नॉन इक्वी ज्वाइन इज टाइप ऑफ अ ज्वाइन इन विच वी यूज ओनली रिलेशन ऑपरेटर एक्सेप्ट इक्वल टू ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेशन ऑपरेटर है, चाहे वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, नॉट इक्वल टू है, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो सभी आप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इक्वल टू इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर बताया। इसका मतलब इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ खाली कहां पे लगेगा, इक्वी ज्वाइन, याद रखिएगा इक्वी ज्वाइन में आपको सिर्फ खाली इक्वल टू ऑपरेटर यूज होना है। ठीक है, और नॉन इक्वी ज्वाइन में इक्वल टू को छोड़कर, यानी कि यहां पर जो हमने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, अब नॉन इक्वल टू, नॉन इक्वी ज्वाइन में क्या होगा, कौन कौन सा ऑपरेटर वर्क करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, राइट, नॉट इक्वल टू, ये हमारे ऑपरेटर वर्क करेंगे। ठीक है, नॉन इक्वी ज्वाइन में। इक्वी ज्वाइन में कौन सा ऑपरेटर वर्क करेगा, इक्वल टू। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, जैसे नॉन इक्वल टू में मैंने यहाँ पे नॉन इक्वल टू ऑपरेटर अप्लाई किया। ठीक है, ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने आपको चीजें बताई। एसक्यूएल में मैंने बताया क्रिएट टेबल कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल का यूज कैसे करते हैं, ड्रॉप टेबल का यूज कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे यूज होगा, सेलेक्ट, लिस्टिंग, ग्रुप फंक्शन कैसे यूज होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आई होप you enjoyed the video, and one more thing, you have to learn this topic very carefully better, because it is very scoring chapters in your examination point of view. Okay, so thank you very much, keep watching, keep learning and keep sharing. Thank you student for watching it.